Hello and welcome to channel, guys. Uh, Today we are going to start a new MCQ series, multiple choice question series. In this, it consists of 10 to 15 questions answer per day. We will discuss near about 10 to 15 questions per day, and this series will provide extra knowledge and push to our preparation of the NET JRF of social work paper 2, and that will increase our confidence as well as the knowledge. So in this series, we will discuss approx 500 questions from a different chapters that will be very useful and important from the exam perspectives. So once we follow this series and we solve the questions that are mentioned in the MCQ series, it will ensure our selection in the examination as a JRF. So let's start from the question number 1. The first question is, in this question they have asked what is the uh, which of the following is not objective of social work. इनमें से कौन सा सोशल वर्क का ऑब्जेक्टिव नहीं है? साइको सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एंड वॉलंटरी लेवर्स को प्रमोट करना, एंड सेल्फ डिपेंडेंसी को डेवलप करना, और ह्यूमैनिटेरियन नीड्स को फुलफिल करना. So this is very simple question from the social work chapter. So the objective of which is not of social work is option B is to promote voluntary labors, because जो साइकोसोशल प्रॉब्लम्स को ये इसका ऑब्जेक्टिव है, साथ ही ये सेल्फ डिपेंडेंसी को बढ़ाना, डेवलप करना, ह्यूमैनिटेरियन नीड्स को भी फुलफिल करना इज आल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशल वर्क. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Question number 2. In which year the Elizabeth Poor Law was constituted? So the option is in 1624, 1601, 1602, and 1632. So the right option is B, which is 1601. Now the next question is, social work has originated from. There is the 4 statement given below: the charity organization, social movement, settlement house movement, reform movement, and the Christian missionaries movement. जो सोशल वर्क जो स्टार्ट हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था स्टार्टिंग में, ये आपका चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोशल मूवमेंट से स्टार्ट हुआ था. उसके बाद ये रिफॉर्म्स आए, रिफॉर्म मूवमेंट आया, सेटलमेंट हाउस मूवमेंट है, उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज मूवमेंट आए. तो सबसे पहले जो सोशल वर्क स्टार्ट हुआ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के बाद तब से हुआ. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. In this question they have asked the classification of the poor into important able bodies and idle poor was done by. बताना है कि इसमें से जो क्लासिफिकेशन किस लॉ के आधार पर ये क्लासिफिकेशन बनाई गई थी पुअर्स की, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, क्लासीफाई किया गया था. एक इम्पोर्टेंट, दूसरा एबल्ड बॉडी, एंड थर्ड इज द आइडल पुअर. सो द राइट ऑप्शन इज सी. एलिजाबेथ पुअर लॉ इज द राइट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन राइट आर नॉट. ह्यूमन राइट्स कौन इसमें बताना है कौन सा नहीं है. यूनिवर्सल, alienable, enforceable, internationally recognized. So universal and alienable both are opposite to each other. So the first option is correct because human rights always are universal. तो सेकंड ऑप्शन गलत ही हो जाएगा. एंड इसमें पूछा गया है कौन सा ह्यूमन राइट्स नहीं है, तो सेकंड इज करेक्ट. और उसके बाद ऑप्शन सी एंड डी आल्सो ह्यूमन राइट्स, इन्फोर्सेबल एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज आल्सो द ह्यूमन राइट्स. So option number B is correct in this, because in this question we ask which is not a human rights. Now the next question is, which one of the following is not a recognized function of field work supervision? There is the 4 statement to combine the principle of rapport building with the field works. field work में rapport building किसी प्रिंसिपल को कंबाइन करना, ये field work का एक फंक्शन होता है. ये ऑप्शन सही है. सेकंड ऑप्शन टू हेल्प दी अंडरस्टैंडिंग दी एजेंसी लिमिटेशंस. एजेंसी की जो लिमिटेशंस होती हैं उसको अंडरस्टैंड करने में मदद करना, ये सोशल वर्क फील्ड वर्क का ही एक फंक्शंस होता है. और साथ ही टू प्रोवाइड हेल्प टू द स्टूडेंट ट्रेनी टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए स्टूडेंट और ट्रेनी को मदद करना, ये भी एक फंक्शन है इसका फील्ड वर्क सुपरविजन का. और ऑप्शन डी इज टू कंडक्ट सरप्राइज विजिट टू द फाइल्ड फॉल्ट टू द इनिशिएटिव डिसिप्लिनरी एक्शंस. ये ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग है, बिकॉज इसमें डिसिप्लिनरी एक्शंस को लेकर ऐसा कोई भी प्रोविजंस नहीं है, ना ही फंक्शन से फील्ड वर्क सुपरविजन का. सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7. इंटीग्रेटेड social work practice is. There is the 4 option.
In the four statement, first statement is working simultaneously with the individuals, family, and community, and statement B is working in the collaboration with the bureaucracy, and option C is helping clients by showing all the accepted methods of social work, and option D is working with the exploited sections of society. सो इसमें बताना है कि आपको कि सोशल वर्क प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस क्या होती है। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें वर्किंग साइमल्टेनियसली विद इंडिविजुअल्स, फैमिली एंड कम्युनिटी, ये सही ऑप्शन है। बिकॉज क्वेश्चन में पूछा गया कि सोशल वर्क, अगर सिंपल सोशल वर्क पूछा जाता तो इसमें से 4 ऑप्शन में से 2-3 ऑप्शन भी और भी सही हो जाते, बट इसमें पूछा गया इंटीग्रेटेड सोशल वर्क, मतलब इसमें आप साइमल्टेनियसली आप इंडिविजुअल की मदद करेंगे, फैमिली, कम्युनिटी, सभी के लिए वर्क करेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। Question number 8. The system referred to in the integrated social work practice model is. There is the 4 options. The first, the education, social and health care model. The second is client and social system model. Option number C is client actions and the change agent system. And option D is client actions, change agent and the environment system. तो आप इसमें से बताना है आपको कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, तो आप सोच के बताइए। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, द क्लाइंट एक्शन एंड द चेंज एजेंट सिस्टम। ये आपने पढ़ा होगा इसमें इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस मॉडल में, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9. सोशल वर्क प्रोफेशन हैज़ एवॉल्व्ड फ्रॉम, सोशल वर्क प्रोफेशन जो इवॉल्व हुआ है कब से स्टार्ट हुआ है, बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, सेटलमेंट हाउस मूवमेंट, या एलिजिबेथ पुअर लॉ, या इमरजेंसी रिलीफ। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है बताइए। सो आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट सोसाइटी, इसका मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो सोशल वर्क मूवमेंट स्टार्ट हुआ था सबसे पहले ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के माध्यम से हुआ था। उसके बाद बहुत सारे लॉ बनाए गए, रिफॉर्म्स आए, मूवमेंट चले, तो पहले स्टार्टिंग चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से हुई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. सोशल वर्क इज क्लोजेस्ट टू, और सोशल वर्क सबसे क्लोजेस्ट किसकी है, सोशल सर्विस की, सोशल वेलफेयर सर्विस, सोशल रिफॉर्म्स, या पब्लिक असिस्टेंट। सो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है बताइए। सो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका सोशल सर्विस। सोशल रिफॉर्म्स, इसका सोशल रिफॉर्म्स भी सोशल वर्क है, बट ये सबसे जो क्लोजेस्ट है आपको वो बताना है। तो सोशल सर्विस इज वेरी क्लोजेस्ट टू द सोशल वर्क। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. सोशल वर्क फिलॉसफी इज डेमोक्रेटिक, ह्यूमैनिटेरियन, neither democratic or nor humanitarian, और ऑप्शन नंबर डी इज डेमोक्रेटिक एज वेल एज ह्यूमैनिटेरियन। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, ये इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इसका आपका राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डेमोक्रेटिक एज वेल एज दी ह्यूमैनिटेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क। इनमें से बताना है कौन सा सोशल वर्क का प्रिंसिपल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज इंडिविजुअलाइजेशन, ऑप्शन बी इज सेल्फ डेवलपमेंट, ऑप्शन सी इज एक्सेप्टेंस, एंड ऑप्शन डी इज सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो आप इसको बताइए कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। सो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, ये इसमें इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल होता है यूनिक होता है अपने आप में, तो ये इसका प्रिंसिपल है, ऑप्शन फर्स्ट। सो ये इसका राइट है, बट इसमें पूछा गया नॉट अ प्रिंसिपल। और सो ऑप्शन बी देख लेते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट। और नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस इज आल्सो प्रिंसिपल, बिकॉज रिस्पेक्ट ऑफ दिस नेगेटिव बिहेवियर्स और क्वालिटी इट इज आल्सो द प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क। सो ये भी सही है इसका। और सेल्फ डिटर्मिनेशन इज आल्सो द प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क, बिकॉज सो दैट ही कैन डिसाइड, जो सोशल वर्क हो रहा है ही कैन डिसाइड और टेक द बेस्ट पॉसिबल एक्शंस इन हिज सेल्फ इंस्टेंट। सो ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट, बट ऑप्शन बी इज ये रॉन्ग है। इसी वजह से ये वाला जो ऑप्शन बी होगा यही सही होगा, बिकॉज उसमें नॉट पूछा गया है कि कौन सा सोशल वर्क प्रोफेशन का प्रिंसिपल नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13. सोशल वर्क प्रैक्टिस इज नॉट डायरेक्टली कंसर्न विथ, बताना है आपको किससे कंसर्न नहीं करता सोशल वर्क प्रैक्टिस। फर्स्ट इज करेक्शंस, ऑप्शन बी इज HIV एड्स, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एंड कंसोलिडेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग्स। तो इसका राइट ऑप्शन आपका होगा सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। करेक्शन करना इसका है, कंसर्न करता है। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स इसका भी ये भी करता है, और साथ ही
HIV एड्स के में भी अवेयरनेस के लिए वर्क करता है सोशल वर्क। तो ऑप्शन नंबर सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज राइट ऑप्शन। सो MCQ सीरीज़ का ये पहले वीडियो था और इसमें हम लोगों ने 13 क्वेश्चन सॉल्व किए और इसके आंसर देखे। तो इस सीरीज़ में आगे भी डेली एक ऐसे 14 या 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इन सभी क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या मेरे के द्वारा बताया गया जो भी आंसर है वो गलत है तो आप काइंडली इसको कमेंट करके बता सकते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन फॉर टुडे।